सो गाइज हेयर्स द पायलट विद अस। सो सर पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा। मैं नमेश सरूजा। हेलो गाइस, व्हाट इज वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड, डूइंग ग्रेट। सो गाइस, अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि भाई आज होने वाला है पायलट के साथ Q&A एंड एयरबस पायलट। एंड Q&A में बहुत मज़ा आने वाला है भाई, जैसा मेरे को लग रहा है, बिकॉज the pilot I'll be taking in my video is so fun and he's really a very great pilot. A huge respect to him. And बाकी एज यूजुअल एयरक्राफ्ट्स भी दिखेंगे, थोड़े कम दिख सकते हैं बिकॉज आज कुछ स्पेशल अराइवल नहीं है। तो जो भी वाइट बॉडीज उस टाइम के बीच आएंगे मैं आप लोग को दिखा दूंगा। सो मेरा सिंपल सा प्लान ऐसा है, राइट नाउ इट्स अराउंड 3। सो अभी आधे 1 घंटे तक मैं 30 मिनट्स तक निकलूँगा एंड मैं कौन से मिलने अराउंड 7। तो उस टाइम के अराउंड जो भी एक आध दो वाइट बॉडी आएगी वो दिखाता हूँ। उसके बाद फिर उनसे मिलूँगा, उनसे Q&A करके फिर 2-4 वाइट बॉडीज़ जो भी अराइवल रहेंगे वो दिखाऊँगा। सो 7-8 एयरक्राफ्ट भी हो जाएंगे एंड बिल्कुल बीच में आपको Q&A मिलेगा, तो देख लेना भाई। So guys, here's the first aircraft of our day. It's VTNAC, the 787-8 of Air India, the latest retrofitted one, and it's going to Tokyo. And speed से मेरे को ऐसा लग रहा है कि P8 से टर्न होना चाहिए, बाकी लेट्स सी। यस, P8 से ही लग रहा है भाई। भाई 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 मेरे पीछे से पूरा वो निकल रहा है यार, उसको क्या बोलते हैं यार, वर्ड माइंड में नहीं आता ना जब चाहिए होता है। Here it is, the very beautiful NAC. और क्या चाहिए यार, आते ही पहला एयरक्राफ्ट P8 से आ गया। कितना ही ब्यूटीफुल है भाई ये तो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यू गाइस लाइक द ओल्ड लिवरी और द न्यू लिवरी ऑन द 787-8s। अपना पर्सपेक्टिव बताओ। So now it's ready to align on runway 29R. Will be going to Tokyo, Haneda, I guess, HND. Let me zoom a bit more. Yes, now it's perfect. Now rolling. Rotate, bro. Yes, finally. So here comes the beautiful 787-9 of Etihad from Abu Dhabi, and I am not sure कि अच्छा आने वाला है नहीं, because थोड़ी सी रात हो गई है। Still I am recording it on 4x. Let's see. अच्छा है वो। Let's fly on 8x now. Yeah, it's decent.
Nice. So guys, here's the 777-300 ER of Air India celebrating India delivery from Kolkata. Nice one. 4x पे कर सकता था इसको भी रिकॉर्ड आई गेस. I didn't took risk and it's fine I guess. Nice. Saudi R777-300 ER from P8, not the usual side. So guys, here's the A330-200 freighter of Egypt Air Cargo from Cairo, and maybe it's the first time I'm showing this aircraft to you guys in the vlog. I'm not sure, but yes, maybe it's the first time. Guys, here's the beast, the A380-800 of Singapore Airlines from Singapore. की आवाज़ यार, क्या crazy है भाई. ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं बना भाई आज तक. Hey guys, I'm at the terminal to meet the pilot for the Q&A, and he's a bit late, so we won't be having much time. I guess we'll only have 10 minutes with him, but still I received more than 100 questions and I have shortlisted 7. Before it was planned for 5, but now I'll be taking 7 questions with him. So yeah, let's go and meet him first. He'll be arriving in under a minute, so I'm also running. So first let's go and meet him. So guys, as planned, the pilot is with me now, and now I'm going to ask him the 7 questions I've shortlisted. So let's directly start with it now. So guys, finally, as promised, here's our pilot. So sir, first introduce yourself a bit. Hello guys, I'm Captain Ramesh. I'm a 320 pilot with Air India since 10 years and currently on deputation to Express. Almost 2 years now. Great, sir. So, as you know, I have some questions shortlisted for you from my followers. So, let's begin with it. So, first question is from Akansha ma'am, who is an ATC officer at Delhi ATC. So, her question is, have you ever blamed ATC when you were the one who missed the call? I know many pilots do that, but I personally I don't like that, and also I don't do it. So, हाँ कभी miss हो जाती है, that's normal. So we just say apologize. Yeah, it's normal. Otherwise, yeah, काफी लोग करते हैं. Yes. So, now second question, sir.
It's from Shivansh Yadav. When things don't go according to the plan in the cockpit, how do you make yourself calm? वो डिपेंड करता है कि क्या क्या कैसा आपको मतलब क्या सिचुएशन है, बट टू कीप माई सेल्फ काम एंड जस्ट फॉलो द SOP. I think Just follow the SOP. follow the SOP, everything will go right. Okay, sir. Now, next question is from Aero Rail Diaries. The question is, what is that one aviation myth that you wish passengers would stop believing? अरे बहुत सारी मिथ्स हैं. Carry on, sir. चालू हो जाओ. सबसे पहले तो अभी फ्री में टिकट्स मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, टिकट सिर्फ फैमिली के लिए होती है, ओनली 5 पर्सन, वो भी कंपनी कंपनी डिपेंड करता है. ठीक है, बाकी अदरवाइज जो बड़ी आजकल जो चल रही है एजेंसीज में स्पेशली कि लग्जरी लाइफ जीते हैं हम लोग एंड बहुत पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, 20 साल में मतलब ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता. कंपनी की यूनिफॉर्म में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता. या तो वो सब मिथ है. जस्ट गेट द फैक्ट्स बिफोर कमिंग. And any myth about aircraft and all? एयरक्राफ्ट तो बहुत सही, मतलब आई डोंट थिंक एयरबस के अलावा कोई इससे बेटर एयरक्राफ्ट नहीं, पीपल के माइंड में जो मिथ होती है लाइक एयरक्राफ्ट को लेके कुछ टाइप की, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं. Okay, now let's move on to next question. So this question is from Soulless R. Ever feel scared when an emergency occurs and how do you react? A good question. गुड क्वेश्चन. सो स्केयर वाला ऐसा कुछ नहीं है. स्केयर तब लगता है जब नॉलेज नहीं होता है. Exactly. है ना. तो हमको हर 6 महीने में हमारे सिमुलेटर्स होता है, Right. और एनुअली रिफ्रेशर्स होते हैं. देन ऑल्सो ऑनलाइन ऑल्सो कुछ भी नया कुछ दिखता है तो हमारे बुक्स हैं रेडी टू रीड, वो रेफर करते हैं हम. तो ऑल द बुक्स, ऑल द मटेरियल इज रीड एंड डू. मेमोरी आइटम्स बहुत लिमिटेड होते हैं जो याद रखने होते हैं, अदरवाइज इट्स ऑल रीड एंड डू. तो उसमें स्केयर वाला कुछ नहीं है. जस्ट वी आर ऑलरेडी ट्रेन फॉर इट. Yes, you are trained for that. Okay. So now next question is from Ish Aviator. Do you get bored following the same QRH and FCOMs? इसमें सर मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप ये दोनों टर्म्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, QRH and FCOMs भी, देन आंसर इट. रेफरेंस हैंडबुक होता है जो रेडीली हैंडी होता है पायलट्स के पास, दोनों पायलट्स के पास. ठीक है, तो वो रीड एंड डू भी नहीं होता. वो भी अगेन कोई भी कैम आता है, कोई भी इंसिडेंट आता है, तो एयरबस ने हमको एक छोटा बुक दिया है, QRH बोलते हैं, क्विक रेफरेंस हैंडबुक. तो कुछ भी कैम आता है तो आपको कुछ भी मेमोरी आइटम नहीं, दिमाग नहीं लगाना, जस्ट फॉलो इट. इंडेक्स दिया हुआ है, फॉलो वट एवर जो बोलता है वो सब फॉलो करना. उसमें स्विचेस होते हैं, उसके बाद बटन दबाओ. उसमें ऑल्सो इसमें एयरबस इतना सुंदर जहाज है, इसके अंदर ये कैम आ जाता है तो उसके आगे उसके वो आ जाते हैं क्या क्या काम करना है. आप करते जाओगे वहाँ से लाइन गायब होती है. तो यही है, इसमें कुछ स्टेयरिंग वाला और कुछ नहीं. और बोरिंग वाला सीन बोरिंग वाला भी नहीं है, बिकॉज every time it's a new new ECAM or new. Right. Every day is different, every weather is different, every landing is different. Yeah. तो हाँ, इसमें बोरिंग कुछ नहीं है. इसमें मतलब मैं तो नहीं हुआ था इसमें. वाकई को Yes. So next question and last question काफी इंटरेस्टिंग है, बट अभी ये लास्ट नहीं है. So this question is from Dhyan XXE. What is the scariest experience you had on board Airbus during your flying years? scariest as in टेक्निकली तो कुछ ऐसा खास आई डोंट रिमेम्बर. बट हाँ, अगेन वही वेदर से स्केरी और कुछ नहीं होता. Okay. तो बहुत बार ऐसा होता है कि गो अराउंड हम करते हैं. Right. तो व्हेन वी आर लिटरली स्केयर्ड वी डू अ गो अराउंड. Go around where you were scared a little bit. तो हाँ, बिकॉज वो कंडीशन डिपेंड करता है ना, वो Right. ऑल सिचुएशन है. एवरी वेदर, एवरी लर्निंग इज डिफरेंट एंड दैट इज स्केरी. बट हाँ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. Yeah, you are trained for it, prepared for it. That's again एक बार लगता है कि मतलब being a human तो Exactly. otherwise we are trained for it, so it's also handle हो जाता है. Perfect. So last and final question and the most interesting one. What did he done if plane got hijacked and hijackers holding guns over his head? This question is from Mr. Fried Apple and the most interesting one. Okay. So hijack situation में हमको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है. ठीक है, जस्ट फॉलो द हाइजैकर. Okay. ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हीरो नहीं बनना. जैसे हम बचपन में वो करते थे ना, Right. स्कूल में स्कूल में होते थे ना कि कोई हाईजैक हो जाएगा, मैं हीरो बनूंगा, सबको बचा लूंगा, मैं सुपर. ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, जस्ट फॉलो द हाईजैकर. जैसा वो बोल रहा है वैसे फॉलो करते हैं. नथिंग एल्स टू बी डन. हीरो नहीं बनना है.
मीन्स जो कह रहा है एज इट इज जस्ट फॉलो दैट. कुछ फॉलो नहीं करना. ये सही है. एंड स्कॉप कोड वगैरह भी कुछ होता है क्या हाईजैक? हाँ वो सब होते हैं, हाँ. कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा. कोई दिक्कत नहीं. मेरा मन कर रहा है एक और क्वेश्चन में ले लूं बिकॉज मैंने सेव कर रखा था. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दे कॉल मी अनन्या एंड द क्वेश्चन इज व्हाट्स द वन थिंग अबाउट बीइंग अ पायलट दैट यू ओनली अंडरस्टैंड आफ्टर फ्लाइंग? यार वन थिंग आफ्टर फ्लाइंग तो ऐसा वही अगेन वो जो मिथ जो मैंने पहले बताई Right. कि जो नहीं जो जो मिथ थी वो Right. पता लगे. Tickets and all that stuff. Reality is कि it's not how it looks like. सब लोग 9 to 5 जॉब में पता क्या होता है, आप आपकी बॉडी साइकिल मेंटेन करता है, आप Exactly. सेम टाइम पे रेस्ट करते हो. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पे आपका कभी 2 बजे डिपार्चर है, कभी 5 बजे डिपार्चर है, कभी रात को फ्लाइट है, कभी दिन में फ्लाइट है. बॉडी कोई स्विच नहीं लगा हुआ ऑन ऑफ का, है ना, कि आपने चाहा तो ऑफ किया सो गए रेस्ट में, ऐसा नहीं. तो दैट्स अ वेरी बिग इशू आई थिंक. ऑल्सो क्या था क्वेश्चन, क्या था भूल गया, सॉरी. एक सेकंड लेट मी आल्सो चेक. मैंने भी हटा दिया था. व्हाट्स द वन थिंग अबाउट बीइंग अ पायलट दैट यू ओनली अंडरस्टैंड आफ्टर फ्लाइंग? हाँ वही, दैट्स द ओनली थिंग, वही सेम आंसर है. मेन कि बाहर से दिखने में इट्स समथिंग एल्स एंड व्हेन यू आर एग्जैक्टली. पहले हम आने से पहले बहुत कुछ हमको लगता था, Yes. ऐसा नहीं है. और इतने साल फ्लाइंग के होने के बाद हाँ 10 साल हो गए अभी. काफी क्लियर है. सही है. तो दिस वाज all of it from the Q&A and thank you so much sir for doing this and agreeing on it. He is camera shy, he is too shy on camera but still he has managed to do it and a big thumbs up and thank you so much sir. If you guys liked the Q&A and now we'll be going back to spotting us vlog भी पूरा करना है. So थोड़े camera shy थे sir but still he managed and इतने अच्छे से he did all of it. So थैंक यू सो मच है उनको. तो बाकी आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट एज वेल. अब वापस चलते हैं स्पॉट पे, करते थोड़ी सी स्पॉटिंग, फिर पूरा ब्लॉग बना के निकलेंगे घर एक ही बारी. गाइज गॉट आवर अकासा एयर्स लैंडयार्ड ऑल्सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. टुडे आई एम यूजिंग द वेडिंग मशीन एज वेल टू गेट वाटर एंड हियर इट इज ग्रेट वेंडिंग मशीन. वाटर बॉटल फॉर जस्ट 10 एंड what bro, the water is stuck there. I guess it's free now. Yeah, it was stuck before. I'll take it out one by one. Wow, my watch is stuck now. Crazy vending machine. Let's go. So guys, as you know I don't show much narrow bodies but फिर मेरे को गालियाँ पड़ती हैं and Gulf Air के fans का ही है. So this is A321 LR of Gulf Air from Bahrain. Especially for Gulf Air fans, otherwise I don't record narrow bodies. So guys, here's the very beautiful 777-300ER of Cathay Pacific from Hong Kong. So guys, here's VT-ANP, the 787-8 of Air India, the retrofitted one, which will now be going to Dubai. Direct जा रहा है. Wow. टेल लाइट भी ऑन नहीं करते यार.
मच्छर है भाई, मच्छर। So as there's the 777-300 ER of Thai Airways from Bangkok. हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड आ रहा हूँ। Yeah guys, this was all from this vlog. I hope you guys liked this one and आपको Q&A भी पसंद आया हो भाई पायलट के साथ। एंड ये ब्लॉग थोड़ा सा छोटा हुआ होगा बिकॉज मेरा मेन मोटिव आज का Q&A नहीं था, एंड उसके साथ में जो भी 5-6 एयरक्राफ्ट मेरे को वाइट बॉडी बढ़िया लगे वो मैंने दिखाए, और कुछ ऐसा स्पेशल अराइवल नहीं था, एंड इसके अलावा और कोई अराइवल भी नहीं था। तो यही था इस ब्लॉग से। यू गाइस लाइक दिस वन एंड आप लोग को मज़ा आया हो भाई। और ऐसी Q&A टाइप के आपको और चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताना भाई। मेरे जो भी एविएशन इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्लाइट इंजीनियर्स, ATC पायलट्स, कैबिन क्रूज, ग्राउंड स्टाफ एंड एवरीथिंग, मैं ट्राई करूँगा जिसको भी मैं ला पाऊँ भाई अपने ब्लॉग्स में, या अलग मैं सोच रहा हूँ पॉडकास्ट स्टार्ट करने की। सो अगर कुछ वैसा होता तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा भाई। बाकी आई होप यू गाइस लाइक दिस वन। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।